So write down the heading, write down the aim, that is write an ALP. ALP stands for Assembly Level Language Programming. Write an ALP for block transfer. Write an ELP for a block transfer. That is your aim. Okay. Abstract transfer a block of content into a into into another block of another block of data. Then memory used, register used, and then you have to draw the particular chart. Okay. First of all, we will complete the program and then we will go for the writing. So what you have to do, you have to initialize first a data segment by using a move instruction. I'm initializing data segment move ax comma 0100h. This is the immediate number which are transferring into content of ax. Next is move ds comma ax. This is the initialization of data segment with the content of ax. Move cl comma 05, it is a counter register. We are setting counter for 5. So 5 block of data we are going to transfer from one location to the another location, that is addressed by your si and di. Okay. So now if you are using si, or if you are addressing that particular source, so source index I am setting up on 1000h, and destination index di I am setting up on 2000h, right? So what exactly that we are performing here, see, this is we can say 0100 is an immediate number, right? Immediate. Immediate number transferred in transferred or copied in AX register. This instruction will initialize data segment by the value or contain of the EX register. This is a counter register. Counter register CL is equal to 5. That is 05 H is copied into CL register. Source index is set to 1000H. Destination index is set to 2000H. So now see, whatever the instruction that we are written on the particular paper, the first instruction is move ax comma 1000h. So sorry, 0100h. This is your immediate number that I am transferring into the content of ax.
So after the execution of this particular instruction, AX will be 0100. So now this number is now used to initialize your data segment. So to initialize the data segment, we have to assign this content of AX into a DX. So for assigning it or copying it, we are using again move instruction, move DS comma AX, right? So now content of AX will be transferred into the content of DS. This is just, we can say, it is the initialization of your data segment that we have. Next line, we are using a counter register CL. So CL is set to the 5. It means 5 blocks of data. Now we are transferring into another 5 block of data. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये 2 ब्लॉक ऑफ डेटा है, राइट, 1 2 3 4 5, राइट, एंड ये 1 2 3 4 5, तो मान लो कि मेरे पास ये 1008 से शुरू हुआ, 1001 1002 1003 1004 एंड 1005। तो यहाँ पे दूसरा मेमोरी का ब्लॉक आएगा, वो आएगा 2000 2001 2003 सॉरी 2003 2004 एंड 2005। तो सिंपल ये प्रोग्राम करता क्या है, ये 5 ब्लॉक के कंटेंट उठाएगा और ये 5 ब्लॉक के कंटेंट में प्लेस करेगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 ऐसे पुट करेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब ये 5 ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 को मेंशन किया है, राइट। तो 5 मेमोरी के ब्लॉक्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग ब्लॉक्स को मैं दूसरे अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक ट्रांसफर। और ये एक ही बार में हो रहा है, और ये एक ही बार में हो रहा है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको 1000H से लेके 5 आगे मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको 2000H पे दिखाई देने वाले हैं, right? So for that purpose we have to repeat some operation. So we are using a looping instruction here, and you know how to calculate the upcode for J and Z. Okay, so simple. Now the next line that we have, that is move AL comma SI. Whatever the content that is present in AL, that is going to be moved into the content of SI. And now move DI comma AL. फर्स्ट ये 5, ये 8 बिट का ब्लॉक है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, हर एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट की होती है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे AL ले रहा हूँ तो 1000 का जो भी डेटा आएगा, ये SI मैंने सेट किया है, ये DI मैंने सेट किया है। SI में से 1000 में से पहली मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो AL में आएगा, और AL में डेटा आने के बाद हम AL का डेटा DL में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक ट्रांसफर करने के लिए मैंने AL का सपोर्ट लिया है। क्या किया है, AL का सपोर्ट लिया है। पहले मेमोरी से डेटा मैं रजिस्टर में ले रहा हूँ, रजिस्टर से डेटा मैं फिर से मेमोरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट वी आर ऑलरेडी लर्न। ओके, सो SI का जो भी डेटा होगा, इसका मतलब ये SI पहला मेमोरी लोकेशन, इसका जो भी डेटा होगा वो AL में आएगा। AL में डेटा आने के बाद AL के डेटा DI में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इट मीन्स ये AL का जो भी कंटेंट है ये अब इसमें DI में जाएगा, राइट। तो ये AL का मैंने यूज किया है सिर्फ एज अ टेम्पररी रजिस्टर फॉर ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन into a next memory location or another memory location, because memory to memory transfer is not possible. So अब ये मेमोरी लोकेशन खत्म हो गई, इसका डेटा यहाँ पे चला गया, तो नेक्स्ट चीज करनी क्या है कि मेमोरी लोकेशन को बढ़ाना है। अगर मेमोरी लोकेशन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, SI को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INC SI। जब INC SI होगा तो DI भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1001 का डेटा 2001 में ट्रांसफर करना है, राइट। तो मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे INC DI, ओके। उसके बाद DEC CL, एक यहाँ पे देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है अभी,
और एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, Cl का जो भी कंटेंट है एक से माइनस कर रहा हूँ, तो Cl अभी 0.5 है, तो ये पूरा ट्रांसफर होने के बाद Cl का जो भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 5 में से एक गया, 4 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं JNZ बैक, और बैक कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, राइट। बैक कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। अब ये कब तक ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा, जब तक Cl की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक। जैसे ही Cl की वैल्यू 0 होती है, ये लूप ब्रेक करेगा और नीचे नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, दैट इज हल्ट। समझ में आया? यस सर। समझ में आया सभी को, या किसी को डाउट है? सर एक बार फिर रिपीट करिए। देखो एग्जैक्टली करना क्या है, ये 1000H मेमोरी लोकेशन है, ये 1001 है, 1002 है, 1003, 1004 और 1005. How many memory locations are there? 5 memory. How many? How many memory locations are there? 5. 5. Okay. ये अब मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ। मान लो ये इसका है, ये इसका है नंबर, ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, और ये इसका नंबर है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000H, 2001H, 2002H, 2003H, 2004H, 2005H. So now, how many memory locations are there now? Again we have 5 memory locations, right? So 11, 12, 13, 14, 15, 16. This is the content of 1000H to 5000H, 1005H, right? So now what exactly the program will do? We have to transfer these contents into these blocks. देखो यहाँ पे दोनों मेमोरी लोकेशंस अलग अलग हैं। एक मेमोरी का लोकेशन का ब्लॉक मैं एज इट इज दूसरे मेमोरी के लोकेशन के ब्लॉक में स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये ऑपरेशन वन बाय वन ही होगा, बट हम यहाँ हमारा लूपिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे, जो कि हमें लाइन ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया गया है। तो करना क्या है, 1000 का डेटा 2000 में डालना है, मतलब 11 कहाँ जाएगा, 11 कहाँ जाएगा, 2000 की मेमोरी, 12 कहाँ जाएगा, 2001। वैसे ही 13, 14, 15, 16 इस तरीके से जाएगा, राइट। मतलब अब देखो इसके बाद ये गया, इसके बाद ये गया, इसके बाद ये गया, इसके बाद ये गया, और इसके बाद ये गया। ओके, एक ही ऑपरेशन मैं 4-5 बार रिपीट कर रहा हूँ। कितनी बार रिपीट करना है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट करना है, राइट, क्योंकि ये 5 मेमोरी लोकेशन है। अब आप बोलोगे कि सर मैं 10 मेमोरी लोकेशन लूंगा, ओके, यू कैन टेक 10 memory locations, but you have to manage this kind of thing. You have to manage this kind of thing with the help of your counter register. So अब करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे प्रोग्राम देखो, ये 2 लाइन तो आपको पता है, ये डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन के लिए हुई है। अब यहाँ से आपका एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, क्या, मूव CL, 05, काउंटर रजिस्टर मैंने सेट किया 5 को। क्यों 5 को सेट किया काउंटर रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे 5 मेमोरी लोकेशंस है,
राइट। तो 5 को मैंने काउंटर रजिस्टर सेट किया। अब देखो ये 2 मेमोरी के ब्लॉक्स है अलग अलग। ओके, तो मैं एक को बोलता हूं SI, दैट इज फॉर सोर्स इंडेक्स। सोर्स से डेटा लेना है। सोर्स कौन सा है? दिस वन, we can say block A and this is block B. So block A will be the source and block B will be the destination. Okay, so now we have to set up SI and DI. So for setting up, or we can say for initializing SI and DI, we are using move SI 1000H and move DI 2000H as the figure shows you. This is the starting of SI and this is the starting of DI. ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ, अब यहाँ ये दोनों मैंने सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स सेट किया है। मतलब मैंने उसको बोल दिया है कि इस लोकेशन से डेटा उठाना है और इस लोकेशन पे डालना है। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज क्या है? मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है। ये भी मेमोरी लोकेशन है, राइट, और ये भी मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर अलाउड है क्या? नहीं, memory to memory transfer is not allowed. For that purpose you have to use one of the temporary register or one of the register that we have. So हमारे पास 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, जैसे कि AL BL CL DL, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैं AL को यूज कर सकता हूँ, BL को यूज करता हूँ, CL मैंने ऑलरेडी यूज किया है, DL को भी यूज कर सकता हूँ, बट बेटर वे है AL को यूज करो। तो AL मैंने एज अ टेम्पररी प्लेस होल्डर या डेटा होल्डर की तरह यूज किया है। इसमें सिर्फ मैं क्या करूंगा, पहले मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर करूंगा और फिर रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करूंगा। तो ये रजिस्टर इन बिटवीन दीज टू मेमोरी लोकेशंस वर्कआउट कर रहा है। ओके, जैसे कि यहां से उठाया, पहले रजिस्टर में डाला, रजिस्टर से उठाया, मेमोरी में डाला। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू टेक इट रजिस्टर, any register, general purpose register that you want. Okay, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, तो देखो कि मैंने क्या किया है, पहले SI का कंटेंट AL में ट्रांसफर किया है। मतलब क्या होगा, देखो ये जो है 11 पहले AL में जाएगा। कहाँ जाएगा? AL में। और फिर ये AL इस 11 को 2000H में ट्रांसफर करेगा। उसी तरीके से ये भी होगा, इसी तरीके से ये भी होगा, इसी तरीके से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, राइट। पहले ये मेमोरी लोकेशन के कंटेंट AL रजिस्टर में जाएंगे, फिर वही कंटेंट डेस्टिनेशन को जो मेमोरी लोकेशन सेट की है डेस्टिनेशन इंडेक्स में, उसी मेमोरी लोकेशन पे रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहला मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा है, दूसरा रजिस्टर में से मेमोरी को आ रहा है। उसी तरीके से पहले सेकंड वाला 1001 पे वैसे ही ऑपरेशन हो रहा है। बट ये ऑपरेशन होने के लिए आपको SI को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और DI को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन पे आपका कंट्रोल है, ये लाइन पे आपका कंट्रोल है। अगर कंट्रोल को ट्रांसफर करना है नेक्स्ट लाइन में, तो SI का कंटेंट 1 से बढ़ाना होगा, तो SI को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, DI को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने क्या किया, INC SI INC DI, राइट। सो उसके बाद ये एक ऑपरेशन हो गया, ये ट्रांसफर होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, ट्रांसफर होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। मतलब पहले ये AL में जाएगा, AL में से फिर से 2000H पे जाएगा, फिर SI इंक्रीमेंट होगा, फिर DI इंक्रीमेंट होगा, और फिर CL जो है 5 पे सेट किया गया है, वो CL इज इक्वल टू CL माइनस 1 हो जाएगा। तो CL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो फिर से SI का वो डेटा AL में जाएगा, AL का डेटा DI में जाएगा, फिर से SI 1 से इंक्रीमेंट होगा, DI 1 से इंक्रीमेंट होगा, CL 1 से
डिक्रीमेंट होगा, तो Cl बनेगा 3। ऐसा करते करते जब Cl की वैल्यू 0 0 हो जाएगी तो ये लूप जो है, ये जो रिपीट ऑपरेशन हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हल्ट है तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया Yes, sir. या अभी तक समझ में नहीं आ रहा है? समझ Now में clear, आया sir. नहीं आया? हाँ Yes, sir. I am समझ में. हाँ। तो everyone now write a program first. This is your program. Write it with the comments. Right? I'm not writing here comments, so you have to write it first. Okay? And then find out the opcode for each and everything, each and every data, each and every instruction. Then we will going to execute that particular part. Okay? Understood? Yes, sir. Find out the opcode fast, and when complete, notify me. सर वो जो मूव SI कॉमा 100H वो मेमोरी लोकेशन है ना? हेलो सर।
Yes, who is there? सर वो जो मूव SI, 100H है वो 100H मेमोरी लोकेशन है ना? Yes, it is memory location. Immediate data. It is immediate. It is immediate. If ओके सर. bracket will be there, only we can consider this is a memory location. If bracket is not there, then that is a immediate number. Okay. यस सर. Hmm. Although it is an immediate number, it would be initiated, or we can say SI will be initialized at this particular memory location as like a data segment. Data segment में यहाँ पे क्या है? Immediate data है, right? So immediate number हम AX में डालें और AX को DS को असाइन करें, उसी तरीके से डायरेक्टली इमीडिएट नंबर हम SI को इनिशियलाइज कर रहे हैं. तो SI 1000 से शुरू होगा, DI 2000 से शुरू होगा. तो ये इमीडिएट ही है, नॉट दिस इज नॉट इमीडिएट. It is immediate addressing mode. It is not a direct addressing mode. Okay, understood? यस सर.